السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خیریت سے ہیں سب؟ جی اللہ کا کرم ہے۔ جی چلیے الحمدللہ دھیرے دھیرے سب جڑتے جا رہے ہیں جب تک اپن درود پاک پڑھتے ہیں نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم کما كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلی وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد اللہ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا دیکھیے لاکھ لاکھ شکر احسان ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا مسلمان پیدا کیا ہے نا، ہمیں ایمان جیسی دولت عطا کی ہے۔ ہم ذرا سی غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، ایمان والا پیدا کیا ہے نا۔ اور ہماری رہنمائی کس سے کی ہے؟ کس سے کی ہے ہماری رہنمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ہماری رہنمائی قرآن سے کی ہے نا۔ ہماری ہماری رہنمائی قرآن سے کی ہے اور ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نمونہ بنایا ہے نا۔ قرآن سے ہماری اللہ تعالیٰ نے رہنمائی عطا فرمائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یعنی پوری زندگی انہوں نے کس طریقے سے گزاری ہے نا، اس طرح جس سے ہم اپنی کیا کر سکتے ہیں، اسے ان چیزوں پہ عمل کر کے ہم اپنی اور اپنے بچوں کی اور آنے والی نسلوں کی اچھے سے تربیت کر سکتے ہیں، ہے نا۔ جی دیکھیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے کیا ہے، ایک نمونہ ہے نا۔ جو پوری زندگی گزری ہے ہم اس پہ غور و فکر کریں تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت نمونہ بنا کے بھیجا ہے نا، کہ ہم اپنی اور اپنی بھی وہ کر سکتے ہیں، اپنے آنے والے اپنے بچوں کی بھی اور آنے والی نسلوں کی بھی ہم خوب اچھے سے تربیت کر سکتے ہیں، ہے نا۔ اور دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں اپنے امت کی پوری رہنمائی فرمائی ہے نا۔ کس طرح؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی امت کے ہر طبقے کے لیے ایک نمونہ ہے نا، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، ہے نا، ہر ایک کے لیے ہے، مرد ہو یا عورت ہو، تندرست ہو یا بیمار ہو، ہے نا، ہر موقع پر اور ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بھی بتایا ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے ہمیں دعائیں بھی بتائی ہیں، ہے نا۔ ہم ہر چیز میں دعا پڑھتے ہیں نا الحمدللہ، تو یہ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو بتائی گئی ہیں، ہے نا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر کیا عمل کیا ہے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ کی سنتیں کیا ہیں، اور آپ نے کن کن موقع پر کون کون سی دعائیں پڑھیں، ان تمام کو سیکھنا اور اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے کیا ہے، ضروری ہے نا، ضروری ہے نا۔ انشاءاللہ ان چیزوں پہ ہم عمل بھی کریں گے
اور ان کو سیکھیں گے بھی اور ان پہ عمل بھی کریں گے، ہے نا. دیکھیے انشاءاللہ آمین. دیکھیے سب سے اچھا کلام کیا ہے؟ کتاب اللہ، ہے نا، یعنی اللہ کا کلام. سب سے اچھا کلام کیا ہے؟ کتاب اللہ، ہے نا. اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ کلام. اور سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ہے نا. اسی پہ چل کے ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، ہے نا. اچھا دیکھیے قبر میں بھی ہم سے ایک سوال ہوگا. کیا سوال ہوگا؟ قبر میں 3 سوال ہوں گے. کیا کیا ہوگا؟ ہاں تمہارا تمہارا دین کیا ہے، تمہارا ہاں رب کون ہے، ہاں. اور اور تیسرا ہے من اسلامکم. ہاں اور من رسولوں کا، رسول کا ہے نا، آپ کے رسول کون ہیں. یہی سوال ہوگا نا. 3 سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ آپ کے رسول کون ہیں، ہے نا. تو اگر ہم نے پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر، سنت طریقوں پر ہم نے زندگی گزاری ہوگی تو ہم جواب دے دیں گے فوراً. اور اسی وقت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب مبارک دکھائی جائے گی، ہے نا. کیا دکھائی جائے گی؟ قبر میں شب مبارک دکھائی جائے گی. اگر ہم نے سنت طریقوں پر زندگی گزاری ہوگی اور ان پر عمل کیا ہوگا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً پہچان لیں گے، ہے نا. تو انشاءاللہ ہم اب جو بھی کام کریں گے تو کام تو دیکھیے ہمیں کرنا ہی ہے، لیکن ہم سنت طریقے سے اپنے ہر کام کو کریں گے انشاءاللہ، ہے نا. اچھا اگر ہم سنت طریقے سے کام کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ تو شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. صحیح، وہ تو سنت کو زندہ کریں گے اپن تو صحیح شہیدوں کا ثواب ملے گا. لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کی یہاں وہی عمل قابل قبول ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر کیا گیا ہو، ہے نا. اللہ تعالیٰ اس کام کو قابل قبول فرماتے ہیں جو جس کام کو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا ہوگا. اس سے کیا ہوتا ہے نا. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی پاکیزہ اور طریقے سے ہی اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی ہے؟ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں 100% کامیابی رکھی ہے نا. انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اگر ہم سنت طریقے سے اپنی زندگی گزاریں گے تو، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے، ہے نا. کیونکہ اللہ نے اسی میں 100% کامیابی رکھی ہے نا. اب دیکھیے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کریں گے اور سنت طریقوں اور سنتوں پر عمل کریں گے تو ہم کیا ہوں گے؟ دونوں جہاں میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، ہے نا. اور اگر ہم سنت طریقوں پہ عمل کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ مصیبتوں اور آفتوں سے ہماری کیا ہوگی؟ حفاظت ہوگی، ہے نا. اور زندگی کے اندر نورانیت اور برکت پیدا ہوگی، ہے نا. دیکھیے کوئی بھی کام ہم کر رہے ہیں لیکن اس کو ہم اگر دعا پڑھ کے کریں گے، اب جیسے مان لیجیے سپوز ہم شروعات کرتے ہیں صبح کی، ہے نا. صبح اٹھتے ہیں ہم سارے روٹین ہمارے جو گھر کے کام ہیں سب کچھ ہیں، لیکن اگر ہم نے یہ نیت کر کے اور دعا پڑھ کے اس اپنے صبح کی شروعات کی، چاہے ہم کچن سے کر رہے ہوں یا صبح اٹھ کے جو ہمارے اٹھنے کا سنت طریقہ ہے اس پہ عمل کر کے کر رہے ہوں، اگر ہم نے دعا پڑھ لی اور یہ نیت کر لی تو ہمارا جتنا بھی ہم جیسے گھر کا کام کر رہے ہیں تو ہمیں گھر کا کام کرنا ہی ہے، لیکن اگر ہم نے نیت کر لی اور ہم نے ایک چھوٹی سی دعا پڑھ لی تو وہ سارا وقت ہمارا کیا ہوگا؟ عبادت میں لکھا جائے گا، ہے نا. چاہے ہم کچن میں ہم چاہے ناشتہ بنا رہے ہوں، برتن دھو رہے ہوں، صاف صفائی کر رہے ہوں، لیکن اگر ہم نے صبح اٹھ کے یہ نیت کر لی کہ اللہ ہم جتنے کام بھی کر رہے ہیں، ہم نے دعا بھی پڑھ لی اور ہم نے یہ نیت کر لی کہ اللہ ہم یہ آپ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اور اس سنت کو ادا کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہ پورا وقت جتنا بھی ہمارا صبح سے شام تک گزرے گا وہ پورا عبادت میں لکھا جائے گا. تو کتنی اچھی بات ہے نا. تو انشاءاللہ کریں گے نا. انشاءاللہ صبح اٹھ کے انشاءاللہ ہم دعا بھی پڑھیں گے اور نیت کر کے اپنے سارے کاموں کو کریں گے، ہے نا. اور دیکھیے ایک حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے نا. جس زمانے میں دین مٹ رہا ہو اور سنت طریقے زندگی سے نکل رہے ہوں، آج کل ہمارے زندگیوں سے سنت طریقے بالکل نکلتے چلے جا رہے ہیں نا. تو اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس زمانے میں دین مٹ رہا ہو اور سنت طریقے زندگی سے نکل رہے ہوں تو ایسے وقت میں ایک سنت کا زندہ کرنا 100 شہیدوں کے برابر ہے نا. اگر ہم ایک سنت کو زندہ کرتے ہیں تو ہمیں 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا، ہے نا.
देखिए हमने ना तलवार उठाई, ना हमने जंग लड़ी, हमने एक छोटी सी सुन्नत पे अमल किया तो हमें 100 शहीदों का सवाब मिला। कितना कितना आसान है हमारे लिए, है ना? अगर हम करना चाहें तो इंशाल्लाह करेंगे ना। जी। इंशाल्लाह। और देखिए कलमे का तकाजा भी यही है ना, कि हम मनचाही जिंदगी छोड़कर रब चाही जिंदगी गुजारें, है ना? अभी हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी मनचाही जिंदगी गुजार रहे हैं, है ना? लेकिन इंशाल्लाह हम अब रब चाही जिंदगी गुजारेंगे और कलमे पे कलमे को पूरा पूरा अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करेंगे, है ना? हमने जबानी तो पढ़ा है लेकिन उसका जो जुज्व है, उसका जो मकसद है, उसको इंशाल्लाह अपनी जिंदगी में लाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, है ना? तो इंशाल्लाह देखिए आज हम कुछ दुआएं और सुन्नत तरीकों के आदाब इंशाल्लाह क्लास में सीखेंगे भी और रिवाइज भी करेंगे, है ना? तो हमने जैसे पिछले हम सुन्नतें पढ़ चुके हैं, पिछली सुन्नतें हमने पढ़ी थी, जैसे हम खाना खाने की सुन्नतें पढ़ चुके हैं, है ना? और पानी पीने की भी पढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह आज हम सोने से पहले की सुन्नतों को दोहराएंगे, है ना? जी जी। आप लोग सुनाएंगे सोने की सुन्नतें जितनी जितनी आपको अभी याद हो। किसी का माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। थोड़ा सा माइक का आप लोग ख्याल रखिए, है ना? जब आपको बोलना हो ना तभी माइक खोलिएगा, नहीं तो म्यूट करके रखिए, है ना? जी। अब देखिए हम सोने से पहले की सुन्नतों को शगुफ्ता दोहराएंगे। साहिबा का माइक डिस्टर्ब कर रहा है आपकी। अच्छा शगुफ्ता साहब जरा देख लीजिए, आप जब आपको बोलना हो तभी खोल लीजिएगा, है ना? हम्म। चलिए तो आप में से सबसे पहले कौन सुना रहा है सोने से जी पहले की सुन्नतें? जी मैं सुना रही हूँ। जी सुनाइए। जी, सोने से पहले की सुन्नत नंबर 1 जल्दी सोए, नंबर 2 बाबूसु सोए, नंबर 3 3 बार बिस्तर झाड़ कर सोए, जी सुरमा लगा के सोए, जी कलमा पढ़कर सोए, जी तस्बीह माशाल्लाह। फातिहा पढ़कर सोए, जी माशाल्लाह। तीनों कुल पढ़कर सोए, जी सूरह मुल्क और सूरह सजदा रात को पढ़कर सोए। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। और सोने का तरीका क्या है, किस तरह सोचा है ये? दाहिनी करवट हाथ रुखसार के नीचे रखकर सोए। और माशाल्लाह। दुआ पढ़कर सोए सोने की। सोने की अल्लाहुम्मा दुआ। बिस्मिका अमूतु व अहया। हाँ एक दुआ और है। जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़कर सोया करते थे। ये सोने की दुआ तो आपने माशाल्लाह सही सुनाई है, लेकिन एक दुआ और है जो वो पढ़ा करते थे, कौन सी है? अल्लाहुम्मा। याद है जी आपको, नहीं याद? वो नहीं याद अब भी वो नहीं। अच्छा हमने नोट करवाई थी, आप गौर करिएगा और है ना इसको याद कर लीजिएगा। जी जी अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबका यौमा तबअसु इबादक, जी जी है ना? ये भी आप याद कर लीजिएगा। माशाल्लाह आपने अच्छी सुनाई है सोने की सुन्नतें। थोड़ा सा और वजाहत से इसमें आप बता सकती थी कि नाज़ो देखिए साहिबा मैं सुनाऊं। जी 1 मिनट इनका पूरा हो जाए फिर आप सुनाइएगा, है ना? तो इसमें जी थोड़ा सा आप और अच्छे से वजाहत से बता सकती हैं जितना, जी लेकिन माशाल्लाह आपने अच्छा बताया है, पॉइंट तो आपने सही बताए ना, तो इन चीजों का इंशाल्लाह हमें गौर करना है और इसको अमल में लाना है। जी जी इंशाल्लाह। शगुफ्ता साहिब अब आप सुनाइए। जी शगुफ्ता साहिबा आवाज आ रही है जी मेरी? जी 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 सोने की 12 सुन्नतें हैं। जी बताइए। जल्दी जल्दी सोने की फिक्र करें और हम्म वजू सोए, 2 रकात नमाज पढ़कर और 3 बार बिस्तर को झाड़ लें और 3 सलाई सुरमा लगाकर सोएं, कलमा शरीफ पढ़कर सोएं और तस्बीह फातिमा पढ़कर सोएं, 33 मरतबा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर जी और तीनों कुल पढ़कर सोएं हम्म और सूरे मुल्क या सूरे सजदा पढ़कर सोएं। हम्म और सोने का तरीका ऐसा है, दाहिनी करवट लेकर हाथ
सर के नीचे रखकर सोएं। सर के नीचे नहीं, रुखसार के नीचे, अपना जो गाल होता है उसके नीचे रखना चाहिए ना, रुखसार के नीचे। अच्छा जी जी जी, अच्छा रुखसार गाल को बदे। जी जी। जी जी। और और सोने की दुआ पढ़कर सोएं। जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए अल्लाह ठीक, दुआ याद है आपको? अल्लाहुम्मा इन्नी अज़ाबका यौमा तब इबादक इबादक हाँ जी, इबादक। माशाल्लाह याद है, लेकिन इसको आप और कई बार रिपीट कर लीजिएगा तो इंशाल्लाह और रवानगी आ जाएगी इसमें, है ना। रोज जी रोज इसको इंशाल्लाह हम अमल में लाएंगे। सोने से पहले इंशाल्लाह रोज पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से याद हो जाएगी। और इसका हो सके तो तर्जुमा भी याद कर लीजिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा तर्जुमा है इसका, है ना। जी। जी जी। और कोई सुना रहा है? जी अब सुना है? जी, अपना नाम बताते जाइए सलाम और फिर सुनाते सदा जाइए, है ना। सुनाते सदा सुनाते। जी, बाकी ना सदर साहिबा के अलावा जिसके भी माइक खुले हुए ना तो प्लीज बंद कर लीजिए, नहीं तो आवाज टकराएगी और सही नहीं आ पाएगी, है ना। जी जी, आप सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सोने की सुन्नतें। ईशा के बाद जल्दी सोने की फिक्र करें, दुनिया की बातें ना करें। जी नंबर 2, बावजू सोएं। 3 मर्तबा बिस्तर झाड़ कर सोएं। 3 सलाई सुरमा लगाकर सोएं। पहले सीधी आंख में लगाना है 3 बार, फिर उल्टी आंख में लगाना है 2 बार। 3 बार अस्तगफार पढ़कर सोना है, फिर तस्बीह फातिमा पढ़कर सोना है। सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा और अल्लाहु अकबर 34 मरतबा। सूरह इखलास और सूरह फलक और सूरह नास पढ़ना है, पढ़कर सोएं, मतलब तीनों कुल पढ़कर सोएं। और जी दाहिनी तरफ करवट लेकर दाहिनी तरफ करवट से लेटकर हाथ रुखसार के नीचे, मतलब गाल के नीचे रखकर सोएं। जी और सोने की दुआ पढ़कर सोएं। जी। और हम्म, और अपनी सूरह सजदा और सूरह मुल्क पढ़कर सोएं। हाँ जी जी, माशाल्लाह सही बताया। सोने की दुआ तो याद है अपनी, अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमुतु वाहिया। फिर वो दूसरी वाली याद करना है जो आपने लिखवाई है, वो याद नहीं है। हाँ देखिए, 5-7 हर्फ की दुआ है, 5-7 वर्ड है उसमें। आप इंशाल्लाह रोज पढ़ेंगी ना। अपन एक दिन बस इरादा कर लें कि आज हमें इंशाल्लाह पढ़ना ही पढ़ना है। एक दिन 2 दिन आप देख कर पढ़ेंगी ना तो इंशाल्लाह आगे फिर आपको याद हो जाएगी वो, है ना, आदत में भी आ जी अब जाएगी। इंशाल्लाह याद कर लेंगे अब हम। जी जी जी। और कोई सुना रहा है? भी हम सुना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, फरजाना खान। जी नमाज के बाद जल्दी सोने की फिक्र करें और 3 दफा वजू सोएं। 3 बार बिस्तर को झटका कर सोएं और सुरमा 3 बार वो सुरमा लगाकर सोएं और सोने के से पहले 3 तस्बीह पढ़ के सोएं और तस्बीह फातिमा पढ़ के सोएं। और उसके बाद में सोने के टाइम पे वो सीधे तरफ हाथ सीधे करोड़ से सोए और गाल एक सीधे हाथ को गाल के नीचे रखकर सोए और सूरह मुल्क और सूरह सजदा की तिलावत करके सोए और सोने से पहले सोने की दुआ पढ़कर सोए, अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमुतु व अहया। माशाल्लाह सही बताई आपने। चलिए, इसको बस हमें अमल में लाना है इंशाल्लाह रोज। और अब भी मैं सुनाऊं? आप नाम बताइए अपना। सिद्दीका। जी बताइए, सुनाइए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईशा की नमाज के बाद जल्दी सोने की फिक्र करें। सूरह मुल्क और हामीन सजदा पढ़कर सोएं। सोने से पहले कपड़े तब्दील करना। बावजू सोना। 3 बार बिस्तर झाड़कर सोना। 3 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ना। 3 सलाई सुरमा लगाना। तस्बीह फातिमा पढ़कर सोना। सूरह फलक और सूरह इखलास सूरह नास पढ़कर सोना। दाहिनी करवट लेटकर रुखसार के नीचे हाथ रखकर सोना। औंधे औंधे बल ना सोना। सोने की दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। ए अल्लाह, मैं आपका नाम लेकर सोती हूँ और मरती हूँ, जीती हूँ और मरती हूँ। जीती हूँ और मरती हूँ। जी चलिए माशाल्लाह।
بس इसको हमें क्या करना है, रोज इंशाल्लाह अमल में लाना है ना. हम सुना तालना साहिबा, जी सुनाइए. इशा के बाद सोने की जल्दी फिक्र करना, फजूल बातों से बचना, जी वुजू कर कर सोना, 3 हाँ मरतबा बिस्तर झाड़ कर सोना, हाँ सुरमा लगा कर सोना, कपड़े तब्दील कर कर सोना, जी किबला रुख करके और हाथ सिर के नीचे रख कर सोना, सोने की जी दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, और रात की तिलावत यानी सूरह सजदा और सूरह मुल्क पढ़कर सोना, जी तस्बीह फातिमा पढ़कर सोना। जी 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 माशाल्लाह. सोने की दुआ याद है आपको? जी जी, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, चारों कुल, वो तीनों कुल, अल्हम्दु शरीफ, दरूद शरीफ और तीसरा कलमा पढ़कर सोना, और सोने की दुआ दूसरी वाली, अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबक यौम तबस्सु इबादका। माशाल्लाह. इसका तर्जुमा, ए अल्लाह तू मुझे अपने अजाब से बचा जिस दिन तू अपने बंदों को हाँ, उठाएगा। कब्र से उठाएगा, है ना. ये कौन सी दुआ है? जब कब्र से, कयामत जी आएगी और कयामत के दिन जब कब्र से सबको उठाया जाएगा, है ना. तो ये उसके लिए हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह पाक से जी कि हाँ, ए अल्लाह तू मुझे अपने अजाब से बचा जिस दिन तू अपने बंदों को कब्र से उठाएगा, है ना. तो ये दुआ भी इंशाल्लाह हम कोशिश करें कि रोज पढ़कर सोया करें. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था ये दुआ पढ़कर सोया करते थे, है ना. जी माशाल्लाह, सभी अच्छे से बता रहे हैं. देखिए, जल्दी सोने की फिक्र हमें करना है और दुआ और दुनिया की बातें नहीं करना है, बावजूद सोना है. और जब हम सोने का इरादा करें तो हम ये ऐसा भी करें कि हम वुजू करें और 2 रकात नमाज नफल पढ़ें और अपने गुनाहों की अल्लाह से खूब माफी मांगे और तौबा करें, है ना. इससे क्या होगा, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें शहादत का दर्जा मर्तबा मिलेगा इंशाल्लाह, है ना. और इसी तरह जब हम 33 मर्तबा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर जब ये पढ़ते हैं हम, तो इससे क्या होता है, इससे हमारे दिन भर की थकान दूर होती है. आप महसूस कीजिएगा, इसको पढ़ेंगी जब आपको खुद पूरा दिन भर के जब हम थके हुए होते हैं तो हमारे दिन भर की थकान दूर होती है और बदन में कुव्वत आती है जब हम सूरह तस्बीह फातिमा पढ़ते हैं तो, है ना. और जब हम चारों कुल पढ़ते हैं तो हम चारों कुल को पढ़कर और दोनों हाथ पर फूंक कर सारे बदन पे फेर लें, है ना. चारों कुल जब हम पढ़ना है, तीनों कुल पढ़ना है तो हम क्या करें, अपने हाथों पर इसको फूंक कर और पूरे बदन पर अपने इसको फेर लें, है ना. और सूरह मुल्क और सूरह सजदा का क्या है, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक नहीं सोते थे, है ना, जब तक अलिफ लाम मीम सजदा और सूरह मुल्क नहीं पढ़ लेते थे. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीम इरशाद है सजदा। कि मेरा दिल चाहता है कि ये सूरह हर मोमिन के अब दिल में हो, है ना. तो इंशाल्लाह इसको हम अमल में लाने की कोशिश करेंगे, है ना. जी, और कोई सुना रहा है? जी बताएं, आप में से और कोई सुना रहा है सोने की सुन्नतें, सोने से पहले की सुन्नतें? जी अभी हम सुना रहे बस इतने ही लोगों ने याद की हैं? हैं, हम भी सुना रहे हैं शबा. हेलो, आवाज नहीं आ रही अभी? जी आवाज नहीं आ रही आपकी, बहुत स्लो आ रही है आवाज. फिर से बोलिए, क्या कह रही हैं आप? आप सुना रहे हैं शबा खान. जी जी सुनाइए, लेकिन आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है ना. थोड़ा हमारा सा फोन इसको मोबाइल को पास कर लीजिए, शायद आवाज तेज आ जाए. आपके अभी. जी बोलिए, अब शायद आए. ठीक है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सोने की सुन्नत हम्म है. जल्दी सोने की फिक्र करें, दुनिया की बातें ना करें, जी और बाजू सोएं, 3 बार बिस्तर झाड़कर सोएं, और 3 सिलाई सुरमा लगाकर सोएं, और कलमा पढ़कर सोएं, और तस्बीह फातिमा पढ़कर सोएं, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, और तीनों को पढ़कर हाथों पे फूंक मार के पूरे बदन पर फेर लें.
اور سورہ ملک الف لام میم سجدہ پڑھیں اور سیدھی کروٹ لے کر ہاتھ رخسار کے نیچے رکھیں اور دعا پڑھ کر سوئیں. اللہم فنی عذابک یوم تبعث عبادک. ماشاء اللہ. اس کا ترجمہ یاد ہے آپ کو؟ نہیں، آپ کی ترجمہ یاد نہیں ہے، اچھا، کر لیں گے چلیے انشاءاللہ. جی اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیجیے گا اور ماشاءاللہ اس کو روز عمل میں لانے کی کوشش کیجیے گا، ہے نا. جی آپ کی. چلیے دیکھیے یہ تو ہوئی سنتیں ہیں نا. اس کے علاوہ بھی ہمیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں پڑھنے کی، ہے نا. جیسے ہم سورہ واقعہ پڑھ لیں، ہے نا. اس سے کیا ہوگا؟ کبھی بھی فاقہ نہیں ہوگا، ہے نا. تو ہمیں کوشش کریں ہم کہ سورہ واقعہ بھی پڑھ لیا کریں. اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع جو ہے نا آمر الرسولوں سے، یہ بھی ہمیں جی پڑھ کر سونا چاہیے، ہے نا. جی آپ کی انشاءاللہ. اور کیا پڑھتے ہیں ہم؟ سنتوں کے علاوہ بھی ہمیں جو چیزیں پڑھ کر سونا چاہیے ان میں اور کیا ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ بتائیں. ہم لوگ 3 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کر سوئے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سوئے، 10 مرتبہ سورہ کوئی استغفار پڑھ کے سوئیں، 10 مرتبہ درود شریف پڑھ کر سوئیں، 3 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ کر سوئیں، اور آیت الکرسی پڑھ کے آیت سوئیں، الکرسی پڑھ 10 کے سونا مرتبہ چاہیے. پوری ہاں، آیت آیت الکرسی الکرسی پڑھ کے پڑھنے کا کیا سوئیں. فائدہ ہے؟ بتائیں پہلے. آیت الکرسی پڑھنے کا کیا فائدہ آیت ہے؟ الکرسی پڑھنے کا یہ کیا فائدہ ہے فضیلت کہ ہے؟ اپنا ایک ہاں فرشتہ دن بھر اپنی عبادت اپنے پاس بیٹھا رہتا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ایک فرشتے کو ہمارے سرحانے مقرر کر دیتے ہیں جو موت کے علاوہ ہر چیز سے ہماری حفاظت کرتا ہے نا. جی جی جی. اور میں ہم آیت الکرسی طریقہ اب پہ ہم سنائے سنت. سنائیے، نام بتائیے اپنا. السلام علیکم رقیہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عشاء کی نماز کے بعد جلدی سونے کی فکر کریں. سورہ ملک اور حامیم پڑھ کر سوئیں. جی سونے سے پہلے کپڑے بدلنا. باوضو سونا، وضو کر کے سونا. 3 مرتبہ بستر جھاڑ کر سونا. 3 سلائی سرما لگانا. 3 مرتبہ استغفار پڑھنا. تسبیح فاتحہ پڑھنا. سبحان اللہ 33 بار. اللہ اکبر 33 بار. الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار. سورہ ملک، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا. دائنی طرف قبلے رکوع لیٹ کر ہاتھ گلے کے نیچے رکھنا کر سونا. پیٹ جی کے بل گلے کے نیچے نہیں، دیکھیے رکیے 1 منٹ. گلے کے نیچے نہیں رکھنا ہے ہمیں، ہاتھ رخسار کے نیچے رکھنا ہے، گال کے نیچے، ہے نا. ہمارا جو ہاتھ ہے ہمارے گال کے نیچے رکھ کر سیدھے ہاتھ کو، اور ہاں سیدھی کرمٹ سے سونا ہے ہمیں. جی پیٹ کے بل اوندھانا سونا. سونے کی دعا پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم بسمک اموت و احیا. اے اللہ میں آپ کے نام لے کر جیتی ہوں اور آپ کے نام لے کر مرتی ہوں. اور سونے کے بعد سو کر اٹھتے وقت سلام کرنا. جی وہ تو اٹھنے کی سنتیں جب اپن پڑھیں گے انشاءاللہ تو پھر وہ اس میں آئیں گی، ہے نا. جی ٹھیک ماشاء اللہ، اچھی سنائی آپ نے. اب میں سناؤں؟ جی آپ نوشین صاحبہ. جی 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 سنائیے. جی عشاء کے بعد سونا، جلدی سونے میں کرنا اور باوضو سونا اور سونے کا ارادہ جلدی کرنا اور بستر کو 3 بار جھاڑنا، 3 بار سیدھی طرف سیدھی آنکھ میں سرما لگانا، پھر 3 طرف الٹی آنکھ میں سرما لگانا، پھر بستر کو جھاڑ لینا، پھر داہنی کروٹ پر لیٹ کر اس کے نیچے رخسار کے نیچے اپنا سیدھا ہاتھ رکھنا اور پھر یہ دعا پڑھنا. اللہم قنی عذابک یوم تجمع عبادک. اے اللہ اے اللہ تو مجھے اپنے عذاب سے بچا جس روز تو اپنے بندوں کو جمع کرے گا. پھر یہ دعا پڑھنا. اللہم باسمک اموت و احیا. اے اللہ تیرے نام لے کر مرتی ہوں اور تیرا نام لے کر جیتی ہوں.
جی اب اس میں آپ نے جو غلطی کی ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی. اور بتائیں. اب دیکھیے آپ یہی سمجھ لیجیے, آپ نے یہ جو دعا پڑھی نا ابھی, اللہم قنی عذابک یوم, اس کے بعد کیا پڑھا آپ نے؟ یوم تجمع عبادک. جی جی, اس کو آپ صحیح کر لیجئے, یہ تجمعو نہیں ہے نا, تب اسو ہے, تا اور با کو ملائیں گے تب, پھر آئین پہ زبر آئے گا, پھر سا پہ پیش لگے گا, تب اسو. ٹھیک ہے, یہ تھوڑی سی آپ کی غلط ہو رہی ہے, تجمعو نہیں ہے, تب اسو ہے, تب اسو عبادک. اچھا تب اسو ہے, اس میں تب جمع لکھا ہوا تھا, اسی لیے میں نے وہی جی یاد. جی, آپ نے شاید غلط نوٹ کر لیا ہوگا, تو آپ اس کو صحیح کر لیجئے, ہے نا. اسو لکھ لیا. تب اسو, جی تا کو با سے ملائیں گے, تا پہ زبر لگے گا, با پہ جزم لگ جائے گا, تب, پھر آئین پہ زبر لگائیں گے, تب, ہاں ہاں پھر سا پہ پیش لگا دیں گے, تب اسو. جی جی دارما صاحبہ, جی, اللہم غنی ہے, غنی قنی, عذاب. قنی, کاف, قاف زیر قی, نون یا زیر نی, قنی. ہاں غنی, جی غنی, جی میں نے قنی. صحیح لکھا تھا, پھر میں نے غلط کر دیا اس کو. جی غنی نہیں نہیں, دیکھیے بہت ہے نا عذابک عربی کے الفاظ ہوتے ہیں نا, بہت نہیں سمجھ میں عبادک. آیا کرے تو بار بار پوچھ لیا کریے نا, لیکن دیکھیے اگر ہم جی غلط نوٹ کر لیں گے تو پھر غلط یاد ہوگا, ہے نا, اور پھر جی ایک حرف صحیح سے زیر زبر سے ہی معنی تبدیل ہو جاتے ہیں, تو اس بات کا تھوڑا سا خیال رکھا کریے. اور اسی لیے آپ کو بار ہے. بار کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ سنائیے, ہے نا, جب انشاءاللہ سنائیں گے تو ہماری غلطیاں درست ہوں گی. تو کلاس میں بھی سنائیں اور گروپ پر بھی سنائیں, ہے نا. اب جیسے یہ اپنی سنتوں کی کلاس چلتی ہے, اس میں جو سنتیں پڑھائی جا رہی ہیں تو اس کو بھی آپ دعائیں بھی سنائیے, اور جو سنت طریقے آپ کو نوٹ کروائے جا رہا ہے وہ بھی سنائیے, تو اس میں جو کمی بیشی ہوگی یا غلطی ہوگی تو انشاءاللہ درست ہوگی, ہے نا. یہ دعا سن لیجئے ایک بار, اللہم قنی عبادک عذابک یوم تبعث عبادک. جی ایک منٹ دیکھیے, آپ نے ایک الفاظ بڑھا دیا اس میں شاید, اللہم جی قنی جی عذابک جی یوم تبعث عبادک, جی جی, ہے نا. ایک حرف شاید آپ کا بڑا ہوا ہے, آپ نے کچھ نہیں یہی ہے, اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک. جی ہاں جی صحیح ہے. صحیح ہے ماشاء اللہ. تو اس کا یہ ترجمہ کیا ہوگا, اللہ تو مجھے اپنے عذاب سے بچا, ہاں, جس جس دن دن تو اپنے بندوں کو قبر سے اٹھائے گا. ایک بار وہ بول دی دعا, اللہم قنی عذابک یوم. اللہم قنی جی عذابک, دیکھیے زال سے لکھیے گا, عذابک, ہے نا, زا سے مت لکھیے گا, جی عذابک, زال سے, عذابک یوم تبعث عبادک. صاحبہ اسی لیے تب کہہ رہی تھی میری اردو جی اتنی اچھی نہیں ہے نا, ہندی میں نوٹ کرتی ہوں. ہاں انشاءاللہ گروپ پہ اب اس پہ ڈال دیا کریں گے تو یہاں سے نوٹ کر لیا کرے گا. جی جی, تبعث عبادک. اب عبادت. جی اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے, اے اللہ تو مجھے اپنے عذاب سے بچا لیجئے, جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا, کہاں سے, قبر سے اٹھائے گا, ہے نا. بریکٹ میں چاہیں تو قبروں سے لکھ لیجئے, جس دن تو اپنے بندوں کو قبر سے اٹھائے گا. جی جی, اور کوئی سنا رہا ہے کیا سنتیں؟ جی میں سنا رہی ہوں. جی سنائیے. سونے کی سنتیں, ہاں, جلدی سونے کی فکر کرنا چاہیے, زیادہ دنیاوی بات نہ کریں, پھر جی اس کے بعد کپڑے تبدیل کر لیں, اور جی باوضو سوئیں, جی اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, استغفار کریں. جی پھر 3 بار بستر کو جھٹکار کر سوئیں. جی پھر آپ کا ہے کہ داہنی کروٹ لیٹیں اور اپنے ہاتھ کو اپنے رخسار کے نیچے رکھیں. جی 3 بار کلمہ پڑھیں, کلمہ جی طیبہ پڑھیں. جی تسبیح فاطمہ پڑھنا ہے, 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, اور 34 جی بار اللہ اکبر. جی 4 قل پڑھیں, اس کو اپنے ہاتھ پہ پھونک کر اپنے پورے بدن پہ پھیر لیں. جی سورہ ملک پڑھیں, جی اور سونے کی دعا پڑھیں, اللہم باسمک اموت و احیا. ہاں, اور آپ کا ایک پوائنٹ چھوٹ رہا دو ہے آپ کا.
हाँ वुजू करके ये तो हो गया था। हाँ सूरह बकरा और आयतल कुर्सी भी पढ़ते हैं, आयतल कुर्सी भी पढ़ते हैं। सूरह बकरा की का आखिरी आमन और रसूलों से पढ़ना चाहिए, जी जी और आयतल कुर्सी पढ़ना चाहिए। जी। एक और क्या छूट रहा है? हाँ, सुरमा लगाना जी, सुरमा सुरमा लगाना, लगाना 3 भी सलाई सुन्नत सुरमा में लगाना। जी, सीधी आंख सुरमा में 3 लगाना भी सलाई और 3 उल्टी आंख में 3 सलाई जी। लगाना। जी और देखिए ये तो हुई सुन्नतें है ना, इसके अलावा जी भी हम जो पंसूरा पढ़ते हैं, हमें रात को बहुत सारी चीजों की तिलावत करके सोना चाहिए, है ना। जी जैसे सूर्य वाकया है, अब देखिए सूर्य वाकया, सूर्य रहमान और सूर्य हदीद, जो लोग ये डेली पढ़ते हैं ना, तो उनको जन्नतुल फिरदौस में रहने वालों से उनका नाम लेके पुकारा जाता है। सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी बात है ना। सूरह वाक़िया, अगर सूरह रहमान। और सूर्य हदीद, सूर्य रहमान, लाइन से तीनों जी दी हुई हैं, सूर्य रहमान, सूर्य वाकया और सूर्य हदीद। जी जी, तीनों ये लाइन से दी हुई हैं। ये इसकी जो भी शख्स तिलावत करता है तो जन्नतुल फिरदौस में, देखिए अपन जन्नतुल फिरदौस का कितना अपन दुआएं मांगते हैं, सबसे आला जन्नत है जन्नतुल फिरदौस, तो वहां रहने वालों में नाम उसका पुकारा जाता है, जबकि वो दुनिया में है। लेकिन जो शख्स, जो भी ये तीनों सूरतें रोजाना पढ़ता है, तो वो जन्नतुल फिरदौस में रहने वालों में उसका नाम पुकारा जाता है। तो इंशाल्लाह हम इसकी भी कोशिश करें और इसको भी पढ़ा करें, है ना। ये मगरिब के टाइम में तो पढ़ने की साहब हम सुरमा तो लगाते नहीं है सोते नहीं तो टाइम। लगाया करिए। देखिए एक सुन्नत भी छूटेगी तो हाँ, एक एक तो सुन्नत निगाह तो हमें तो इंशाल्लाह। ज्यादातर सब काम कर लेते हैं। इंशाल्लाह पता होगा तो अमल में लाएंगे चीजों को। जी, इंशाल्लाह। नाज़मा साहिबा के टाइम फोन आ गया। जी जी जी, क्या बोल रही थी आप, फिर से दोहराएंगे? थोड़ा बीच में जरूरी कॉल आ गया था तो बात वहीं रुक गई। जी फरीदा साहिबा, जी नहीं, मैं ये क्या कह रही बता थी रहे हैं? इंशाल्लाह अब ये याद कर लेंगे तो कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा सुन्नतें अदा हों। हाँ इंशाल्लाह। देखिए जैसे शगुफ्ता साहिबा कह रही हैं कि सुरमा नहीं लगाते हैं ना, तो हमें इंशाल्लाह जी एक एक सुन्नत को हमें याद कर करके उसको अदा करने की कोशिश करना है, अमल में लाना है ना। देखिए जी कि एक छोटी सी सुन्नत भी हम अदा कर रहे हैं तो हमें कितना सवाब मिल रहा है ना। 100 शहीदों का सवाब मिल रहा है। तो जी बहुत छोटी छोटी सी सुन्नतें हैं और बहुत मतलब बहुत मुश्किल नहीं है ना। तो जी इंशाल्लाह अगर हमसे एक भी सुन्नत छूट रही है तो हम कोशिश करें कि हम उस सुन्नत को जरूर अमल में लाएं, और इंशाल्लाह रोज एक दो दिन, 2 4 दिन अगर इसकी हम पाबंदी कर लेते हैं ना, तो फिर इंशाल्लाह फिर हमारी आदत ये बन सोते जाती है। वक्त सूरह फातिहा भी पढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल, सूरह है ना? फातिहा भी पढ़ सकते हैं। तस्बीह फातिमा है, सुबहान अल्लाह, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह वो और तो अल्लाह अलग अकबर। है फातिमा, जैसे वो कई जगह मैंने पढ़ा है कि जी सूरह फातिहा और आपका आयतल कुर्सी और ये चारों कुल की हाँ, फजीलत। ये भी पढ़ सकते हैं अपन। जी जी। और देखिए पढ़ने की तो और भी बहुत सारी चीजें हैं ना, जैसे आमन रसूलों का पहला रुकू अगर हम ये जी पढ़ते हैं, और इन्ना फी खल्क़िस समावाति सूरह आले इमरान की ये आखिरी रुकू है, ये वाला है ना। तो ये अगर हम पढ़ के सोते हैं तो हमें रात भर नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है ना। कितनी जी छोटी सी है, आमन रसूलो इन्ना फी खल्क़िस समावाति से पूरे आखिर तक आले इमरान, है ना। तो ये एक रुकू है बस। लेकिन अगर हम ये पढ़ के सोते हैं तो हमें पूरी रात नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। तो इंशाल्लाह हम इसकी भी कोशिश करें और सोने से पहले इसको जरूर पढ़ा करें, है ना। जी। जी, और कोई सुना रहा है क्या? जी बताएं, आप में से और कोई सुना रहे हैं क्या? चलिए ठीक है, माशाल्लाह। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी अब हम सुना
जी जी आ रही है, थोड़ा सा तेज बोलिए आसिया साहिबा, बहुत स्लो आ रही है आपकी आवाज। जी, सोने की सुन्नतें। सबसे पहले जल्दी सोने की फिक्र करें। नंबर 2, बावजूद सोएं। नंबर 3, बिस्तर 3 बार झाड़ दें और सीधी कमर से सोएं और अपना एक सीधा गाल रुखसार के नीचे रखें और एक हाथ कमर पे रखें और चारों कुल आयतल कुर्सी पढ़ के सोएं। तस्बीह फातिमा और सूर्य मुल्क और अलिफ लाम मीम सजदा पढ़ के सोएं जी और 3 बार सुरमा लगा के सोएं, सीधी आंख में और उल्टी में भी 3 बार और दुआ पढ़ के सोएं। अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतु व अहया। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। और एक और जो दुआ है, दोनों दूसरी दुआ भी याद है आपको, नहीं याद? जी अभी थोड़ी सी कच्ची है। अब अल्लाहुम्मा आप क़िनी अज़ाबका, अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबका। दो दो हर्फ याद नहीं है, अभी कर लेंगे जी जी आप इसको भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कर लीजिएगा, है ना, माय तर्जुमे से, और कोशिश जी करिएगा कि ये वाली दुआ भी हम जी पढ़कर और सोएं, है ना। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी। चलिए चलिए, और किसी को तो नहीं सुनाना, हम आगे बढ़ें क्या? बताएं अगर और किसी को सुनाना हो तो। जी आगे भी कर हम लेते। सुनाए। कि आप नाम बताइए अपना। सोने से पहले की सुन्नतें। इशा जी की नाम नमाज क्या के है बाद आपका, जल्दी नाम सोने क्या की है? फिक्र करें। आपका नाम सोने बताइए से पहले। जी अभी आपका नाम बता दीजिए। मेरा शिफा। जी जी बताइए। सोने से पहले की सुन्नतें। ईशा की नमाज के बाद जल्दी सोने की फिक्र करें। सोने से पहले कपड़े बदलना, बावजूद सोना, 3 बार बिस्तर झटकार कर सोना, 3 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ना, 3 सलाय सुरमा लगाना, तस्बीह फातिमा पढ़ना, तीनों कुल पढ़ना, पेट के बल औंधा ना सोना, सोने की दुआ पढ़ना। जी दुआ याद है सोने की? जी अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। तर्जुमा, अल्लाह मैं आपका नाम लेकर जीती हूँ मरती हूँ। माशाल्लाह थोड़ी स्पीड बहुत तेज है आपकी। आराम आराम से अपन दुआ जब पढ़ें तो अपन आराम से पढ़ें कि अपन से कोई भी अल्फाज मिस नहीं हुए ना। जी जी माशाल्लाह सही बताई आपने। बस इस पे हमें इंशाल्लाह रोज अमल करना है। हम अमल करेंगे तो हमें सुन्नतों का, एक सुन्नत को हमें सुन्नतों का इंशाल्लाह खूब सवाब मिलेगा, है ना। जी जी और कोई? चलिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे लोगों ने सुनाई है। बस इंशाल्लाह हमें सुन्नतों पे याद कर करके खूब अमल करना है कि हमसे इंशाल्लाह एक भी सुन्नत नहीं छूटे, है ना। जी चलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी सुन्नतें हुई। पिछली क्लास में हमने काई की सुन्नतें पढ़ी थी? तेल लगाने की सुन्नतें। तेल डालने की सुन्नतें। तो उस पे आप लोग अमल कर रहे हैं? जी जी कोशिश कर रहे इंशाल्लाह हैं बिल्कुल। जी 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 देखिए, हमें खाना खाना है, पानी पीना है, टॉयलेट जाना है ना, सारे काम हमको करना ही है। लेकिन बस हमें जो हम इन्हीं कामों को अगर हम सुन्नत तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह हमें सवाब मिलेगा। और हम ये कब होगा, जब हम इसको अमल में लाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो हम इंशाल्लाह एक एक सुन्नत को अमल में लाने की कोशिश करेंगे, है ना। देखिए जब हम छोटी छोटी सुन्नतों पे अमल करते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला हमें बड़ी बड़ी सुन्नतों पर अमल करने की हिदायत देते हैं, है ना। देखिए कितना छोटा सा मामूली सा काम है, अगर हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो हम सुन्नत तरीके से चढ़ जाएं। अल्लाह अकबर कहते हुए सीधा पैर ऊपर रखें पहले, और अल्लाह अकबर कहते हुए चढ़ें, है ना। और जब हम नीचे उतर रहे हैं तो हम सुबहान अल्लाह कहते हुए उतरे। तो हमने एक सुन्नत भी अदा करी और हमारा जो काम था वो भी हो गया, है ना। तो इंशाल्लाह अब कर तो रहे हैं हम, लेकिन हम नियत भी करें कि हम सुन्नत को अदा कर रहे हैं और उसी तरीके से उस काम को करें, तो इंशाल्लाह जितना भी काम हम करेंगे हमारा सब इबादत में लिखा जाएगा, है ना। लेकिन कब होगा कि जब इंशाल्लाह हम अमल करने की कोशिश करेंगे, है ना। जी चलिए तो हम हदीसें भी याद करते हैं और इसमें एक दुआ भी याद करते हैं। अच्छा आप लोग हदीसें आप लोगों ने याद की हैं? जी अपी। जी
चलिए सुना दीजिए जितनी जितनी हदीसें आपको याद हो, फिर इंशाल्लाह अपन आज एक फिर नई हदीस सीखेंगे। जी, कौन सुना रहा है? थोड़ी थोड़ी सी सुना दीजिए जिसको जितनी याद हो। हदीस नंबर 1 हम सुनाए। जी सुनाइए। हदीस नंबर 1, अद्दीनो युसरन, दीन आसान है। फिर से सुनाइए, क्या कहा आपने? अद्दीनो युसरन, दीन युसरन आसान नहीं है। है, युसरन नहीं है, युसरुन है, रा पे 2 पेश युस लगे हुए हैं। जी जी जी, उसको जी सही कर लीजिए आप, है ना, पेश लगा लीजिए। जी जी। अद्दीनु अद्दीनो युसरुन। युसरुन, जी युसरुन, जी दीन आसान है। जी। अस और क्या है वो, अस कबलल कलाम। हाँ, क्या करते हैं अपन? सबसे पहले क्या करना चाहिए अपन को? सलाम करना सलाम करना चाहिए, बात सलाम। करने से पहले सलाम। अस्सलामु कबलल कलाम, हाँ, सलाम आपको आगे का बात करने से पहले सलाम करूं। हाँ, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अस्सलामु से, है ना? अस्सलामु। अस्सलाम कबलल कलाम। हाँ, बात करने से पहले सलाम करें। सलाम करना क्या है? सुन्नत है। सुन्नत है, हाँ, सुन्नत है जी। सलाम करना सुन्नत है। सलाम अल्लाह का नाम है, इसको खूब फैलाएं, है ना? और सलाम का जवाब देना वाजिब है। जी, और क्या है? मिफ्ताहुल जन्नत सलात। हदीस हाँ, नंबर 3, मिफ्ताहुल जन्नत, नमाज जन्नत की कुंजी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और 16 हदीसें याद कर ली थी, बस ये है कि सुनाते वक्त माशाल्लाह, एकदम तो एक अटक एक हदीस जाते। को रोज जी 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 दोहराते रहा करिए। जब हम दोहराते रहेंगे जी ना तो इंशाल्लाह नहीं भूलेंगे, है ना? हमें जिस जी वक्त जो चीज याद आ रही है हम उस वक्त उसको दोहराने बैठ गए, है ना? जी। चलिए कोई बात नहीं, इतनी यादें माशाल्लाह आपने इतनी सुनाई। और कोई सुना रहा है? तीसरी क्या है? जी अपी हम सुनाए। जी सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अद्दीनु युस्रुन, दीन आसान है। हदीस नंबर 2, अस्सलाम क़ब्लल कलाम, बात करने से पहले सलाम करो। हदीस नंबर 3, मन गश फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम मुसलमानों में से नहीं। जी हदीस माशाल्लाह। नंबर 4, मिफ्ताहुल जन्नतिस सलात, जन्नत की कुंजी नमाज है। जी और इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियतों पर है। और अपनी अलैकुम बिस्सिद्क़ी, हमेशा सच बात कहो। माशाल्लाह माशाल्लाह। और पिछली क्लास में भी अपन ने एक याद करी थी, जी याद है अपनी ला आपको? हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हाँ, तर्जुमा याद है इसका? जी अपनी नेक काम करने की कुव्वत, नहीं, पहले गुनाहों से गुनाहों बचने से की बचने की ताकत। ताकत और नेक हाँ, काम करने की कुव्वत सब अल्लाह ही की तरफ से है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़मा बस साहिबा, आप अपनी इसकी कुछ मर्जियां भी। पीडीएफ बना दीजिए ना। इसकी पीडीएफ। जी, जी जी। क्या वो नोट करने में ठीक है। बहुत आसानी होती है, इतनी जल्दी जल्दी लिख नहीं पाते, नहीं तो क्लास डिस्टर्ब होती है बार बार बीच में। अच्छा अच्छा, चलिए या तो मैं स्क्रीन पे शेयर कर दिया करूंगी इंशाल्लाह आपसे, या जी जी मैं इसकी पीडीएफ बनवा के और फिर मैं ग्रुप पे शेयर करूंगी, तो इंशाल्लाह आप लोग खूब अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि नोट देखिए कर जेर लेंगे। जबर की हाँ गलती से फिर क्योंकि मायने तब्दील हो जाते हैं ना, जी, वो सुनने में मिस्टेक होती है ना तो गलत नोट हो जाता है फिर गलत वो। नोट हो जाता है। जी अभी जी, तो अभी शुरू इंशाल्लाह। से डाल दीजिएगा। जी जी, अभी अपन ने अपनी 7 हदीसें हुई हैं अभी, है ना? हाँ, तो 7 डाल दीजिएगा। हाँ, तो इंशाल्लाह अपन आज आगे की भी पढ़ेंगे, और इसके इंशाल्लाह पीडीएफ बना के मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगी, है ना? तो आप लोग अच्छे से और नोट कर लीजिएगा, जो मिस्टेक है तो उनको सही कर लीजिएगा। जी, इंशाल्लाह। चलिए, और कोई सुना रहा है क्या? सही सुनाई है मैंने। मैं सुनाऊं? जी माशाल्लाह, आपने सही सुनाई है पूरी। जी, नाम लीजिए अपना और फिर सुनाइए, क्या नाम है आपका? अभी मैं शिफा। शिफा। जी सुनाइए। हदीस नंबर 1, अद्दीनु युस्रुन, तर्जुमा दीन आसान है। हदीस नंबर 2, मिफ्ताहुल जन्नत सलाह, जन्नत की कुंजी नमाज है। हदीस नंबर 3,
इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर है। हदीस नंबर 4, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे मुसलमानों में से नहीं। हदीस नंबर 6, अलैकुम बिस्सिद्क़ की तर्जुमा, हमेशा सच बात कहो। हदीस नंबर 7, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तर्जुमा गुनाहों से बचने की ताकत और नेक काम करने की कुव्वत अल्लाह की तरफ से है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब देखिए ये आपने याद कर लिए। आपके घर में जो भी लोग हों, आपके छोटे बहन भाई हों या आपके घर में जो भी लोग हों, तो आप कोशिश करें कि अब आप उनको सिखाएं ये हदीसें, है ना। जी इंशाल्लाह। जी, या हमारे जो भी मिलने वाले हैं, हम जिनसे भी मिल रहे हैं, बहुत सवाब है हदीसें सिखाने का, है ना। जी माशाल्लाह, अच्छी सुनाइए। और कोई सुना रहा है? चलिए 2:30 भी बज गया। चलिए आज हम एक नई हदीस, आगे की हदीस सीख लेते हैं, है ना। जी, इसका भी इंशाल्लाह, इसकी भी पूरी PDF बना के और मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। चलिए अब हम आज आगे की हदीस नंबर 8 पढ़ लेते हैं ना। हदीस नंबर 8, हदीस मैं नंबर पढ़ 8। लूंगी, हाँ आप लोग मेरे साथ दोहराइएगा, है ना। हदीस नंबर 8, हदीस नंबर 8, खैरुकुम मन तअल्लमल नाज़मा साहिबा क्या कुरआन 8वां नंबर क्या है? व अल्लमह। जी जी शगुफ्ता साहिबा, मैं दोहरा रही हूँ, आप पढ़ लीजिए अभी, है ना, क्योंकि लिखने में गलती होगी। मैं इसका PDF डाल दूंगी, तो आप है ना उस पे से नोट कर लीजिएगा। जी ठीक अभी है अभी जी पढ़ लेते हैं अभी। जी जी अभी आप पढ़ लीजिए और इंशाल्लाह मैं ग्रुप पे डाल दूंगी, तो फिर आप उसको सही नोट कर लीजिएगा। जी अभी पढ़िए हदीस नंबर 8, खैरुकुम खैरुकुम मन तअल्लमल मन तअल्लमल कुरआना कुरआन व अल्लमह। व खैरुकुम खैरुकुम मन तअल्लमल मन तअल्लमल कुरआना कुरआन व अल्लमह। व अल्लम खैरुकुम खैरुकुम मन तअल्लमल मन तअल्लमल कुरआना कुरआन व अल्लमह। खैरुकुम खैरुकुम मन तअल्लमल, मन तअल्लमल मन मत कहिए, देखिए मन कहेंगे यहाँ पे हमें इख्फा करना है ना, क्योंकि नून यहाँ पे ता आ रहा है ना। हुरूफ इख्फा के 15 हरफों में से ता आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नून की आवाज को नाक में छिपा कर पढ़ेंगे। मां तअल्लमल, है ना, इस तरह पढ़ेंगे अल्लमल जी। मां तअल्लमल मन तअल्लमल कुरआना कुरआन व अल्लमह। खैरुकुम खैरुकुम मन तअल्लमल मन तअल्लमल कुरआना कुरआन व अल्लमह। व अल्लम खैरुकुम खैरुकुम मन तअल्लमल मन तअल्लमल कुरआना कुरआन व अल्लमह। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआना व अल्लमह। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व इसका तर्जुमा है, हाँ, तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए, है ना। तुम में से बेहतरीन वो शख्स है, हाँ, जो कुरान सीखे और सिखाए। चलिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली हदीस भी इंशाल्लाह मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसे भी याद कर लीजिएगा, है ना।
چلیے جیسے کہ ہم ایک دعا بھی یاد کرتے ہیں تو ہم ایک چھوٹی سی دعا بھی لے لیں. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز وطر سے سلام پھیرتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے. کون سی دعا ہے؟ سبحان الملک القدوس. دہرائیے میرے ساتھ. سبحان الملک سبحان الملك القدوس ملک القدوس. جی سبحان سبحان الملک الملك القدوس. القدوس سبحان سبحان الملك القدوس. جی یہ چھوٹی سی دعا ہے، اس کو آپ لوگ یاد کر لیجئے گا اور کوشش کرا کریے گا کہ وطر نماز کے بعد ہم اس دعا کو ضرور پڑھیں، ہے نا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وطر نماز پڑھتے تھے تو سلام پھیرنے کے بعد اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، ہے نا؟ جی چلیے تو الحمدللہ ہماری آج کی ہم نے سنتیں دوہرا بھی لی ہیں، ایک حدیث بھی ہم نے پڑھ لی ہے اور انشاءاللہ ایک جو دعا ہم نے پڑھی ہے انشاءاللہ اسے بھی یاد کریں گے اور اگلی کلاس میں اب ہم نئی سنتیں انشاءاللہ نوٹ کریں گے. ٹھیک جی چلیے تو ہم کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے، کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیجئے، نہیں تو پھر ہم دعا پڑھ کے کلاس کو انشاءاللہ مکمل کریں. کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ سبحان الملك القدوس. جی چلیے تو ہم دعا پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ. ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة ربك رب العزة عما يصفون عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.